Hello everyone. So here we are taking a question from probability. Again a very challenging, very interesting question. ये हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को देखा भी हो. In many institute sheet you will find this question. But I want to give a solution. कैसा इसको आप बहुत easily solve कर सकते हो without much calculation. ठीक है? Let's go through this question here. The question is 6 fair dice are thrown simultaneously. What is the probability that sum of the numbers appeared on the dice is divisible by 7? ठीक है? What is the probability that the sum of numbers appeared on the dice is divisible by 7? Again, you try this question. आपका मेथड सोचो. Then I'll give you a very easy solution for this question. ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखना. Pause करो, try करो. Okay? So let's start with the solution. The question here is, देखो, you are rolling 6 dice simultaneously. ठीक है? Probability that sum of the numbers is appeared on the dice is divisible by 7. ठीक है? तो भाई अगर आपने 6 डाइस को थ्रो किया है, ये 1 2 3 4 5 6, तो वन मेथड कैन बी, देखो विच इज वेरी लेंथी मेथड, इज बाय यूजिंग कोएफिशिएंट मेथड. ठीक है, वो मैं नहीं सॉल्व करूंगा. आई एम जस्ट गिविंग यू कन्वेंशनल मेथड टू सॉल्व दिस. दैट भाई अगर नंबर है x1 x2 x3 x4 x5 x6, so I can say xi जो होगा x1 x2 x3 x4 x5, all this will be between 1 and 6. correct? तो can I say x1 can take 1 to 6, similarly x2 can take 1 to 6 because डाइस को थ्रो कर रहे हैं, फिर डाइस को थ्रो कर रहे हैं, राइट? तो सम ऑफ नंबर्स शुड बी, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x6, it should be a multiple of 7, मतलब it should be 7k, right? Where k will be equal to 1 2 3 4 5 35 तक जा सकते हैं. इवन 6 का लोगे तो भी आपका 42, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा. यहाँ पे भी देखो मल्टीपल ऑफ 7 आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम हम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 7, अच्छा, विल गो टू 5 और ये 6. ठीक है ना, सब पे 6 नहीं, we will go to 5 only, 35. ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम 36 हो सकता है ना, तो we can go to 35 only, right? तो k can be equal to 1 2 3 4 5, right? So can I say this will be the coefficient of, I can say what is the number of solutions of this? You can say this is coefficient of x raised to 7k, where k is 1 2 3 4 in what? अब x1 जो है, x1 can take 1 2 3 4 5 6 7, right? So this is x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, x raised to 4, x raised to 5, x raised to 6. x1 can take these values. Similarly x2 can take these values. तो कहना से इसमें अगर हम पावर 6 कर दें, ठीक है, x1 के करस्पॉन्डिंग एक ब्रैकेट, x2 के करस्पॉन्डिंग एक ब्रैकेट, x3 के करस्पॉन्डिंग एक ब्रैकेट, x6 के करस्पॉन्डिंग एक ब्रैकेट, तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 7 होगा, that will be the total number of favorable cases. ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? फेवरेबल केसेस, राइट? तो that will give you the favorable cases, और सैंपल स्पेस आपको समझ में आती है 6 into 6 into 6, that is 6 raised to 6, वो आप यहाँ से करेंगे. तो this will give you the favorable cases when the number sum is divisible by 7. ठीक है, so this is a method to solve this question, a conventional method to solve this question by using coefficient method. ठीक है, this you can try. I am giving you a very interesting approach to solve this question. जनरलाइज कैसे करेंगे? बट देखो यहाँ पे 7 है, स्पेशल नंबर है, बिकॉज एक तो प्राइम नंबर है, और जो डाइस है उस पर 7 नहीं आ सकता, बराबर? 1 2 3 4 मैक्सिमम इट कैन बी 7. तो डाइस पे कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल नहीं होगा. वी वांट सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7. तो अब ध्यान से देखो, लेट्स से इफ आई थ्रो n डाइस, ये n डाइस, हम 6 पे आएंगे, n इक्वल टू 6 पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो ये लेट्स से हमने n टाइम्स इसको, n डाइस को हमने रोल किया. ठीक है, तो नाउ सी इफ आई से दिस इज nth डाइस, दिस इज nth डाइस. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी इज pn. हमने मान लिया कि nth डाइस पे सम ऑफ नंबर्स ऑन n डाइस is divisible by 7. इसका जो प्रोबेबिलिटी है
इसका जो प्रोबेबिलिटी है वी हैव कंसीडर दिस इज इक्वल टू पी एन, एन टाइम्स रोल करने पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज पी एन, करेक्ट। नाउ सी भाई अगर आपने इसको n टाइम्स रोल किया, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 1 2 3, लेट्स से दिस इज n और ये n माइनस, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, लेट्स से लास्ट प्लेस पर जो nth प्लेस है उस पे इट विल बी यू कैन से मल्टीपल ऑफ 7 और इट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो डाइस में मल्टीपल ऑफ 7 तो आएगा नहीं, तो वो तो वैसे ही गया। तो दिस नंबर, ठीक है, nth डाइस पे कैन बी से इसके पहले का जो सम है, बराबर, इसके यहां से यहां तक का जो सम है वो या तो मल्टीपल ऑफ 7 होगा, राइट, या फिर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से जो सम है दैट इज मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, और यहां से यहां तक जो सम है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। अब अगर ये नॉट मल्टीपल ऑफ 7 है, यहां पे अगर मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है, यहां से यहां तक का सम इज मल्टीपल ऑफ 7, मतलब ये nth प्लेस है और ये n-1 प्लेसेस पर सम जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो यहां पे कोई भी नंबर रख लो आप, सम विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, बिकॉज अगर इसका सम, इस पूरे नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 7 आना है तो यहां पे इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 ओनली, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज जो डाइस है, डाइस पे तो 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये केस तो गया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दीज नंबर्स, यहां से जो नंबर्स हैं इनका सम शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब अगर हमने ये nth प्लेस है, ये nth प्लेस, तो ये n-1 प्लेस पे जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो कैन आई से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यहां से यहां तक की will be 1 minus probability n-1. I hope this point is clear, because what we are saying is कि what is Pn? Pn is n places पर sum is divisible by 7, divisible by 7। तो 1 minus Pn क्या होगा, that is sum is not divisible by 7। अब हमने n की प्लेस पर n-1 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, n-1 प्लेसेस पर अगर हमने मतलब n-1 डाइस को रोल किया, the sum of those numbers appearing on the dice is not divisible by 7। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1, ठीक है। तो यहां से यू कैन सी दिस प्रोबेबिलिटी यहां से आता कि दिस इज 1 माइनस Pn-1। अब जैसे आप लास्ट प्लेस पे गए, ठीक है, तो अब अगर आप लास्ट प्लेस पे गए तो आप ध्यान से देखना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल सम क्या लेके आना है, सम मल्टीपल ऑफ 7 लेके आना है, ठीक है। अब अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ठीक है, तो यहां से जो सम होगा फर्स्ट प्लेस से n-1 तक, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब क्या होगा, या तो वो 7k+1 का होगा या फिर वो 7k+2 का होगा। यहां लिखता हूं 7k+1 और इट विल बी 7k+2 और इट विल बी 7k+3, 7k+4, 7k+5, 7k+6, ठीक है। These are the possible sum from 1 to n-1 places। तो अब ध्यान से देखो कि अगर आप इसका सम यहां से यहां तक का सम 7k+1 का फॉर्म का है, तो यहां पर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इट शुड बी द लास्ट प्लेस शुड हैव, इसके क्या मतलब क्या नंबर होना चाहिए, इट शुड बी 6, क्योंकि अगर ये 6 में ऐड करोगे यहाँ पे तभी इसका मल्टीपल 7 के बराबर हो सकता है, करेक्ट। सिमिलरली इसको देखो, इफ आई टेक कि यहां से यहां तक का सम मान लो 7k+2 था, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचेगा दैट इज 5, सिमिलरली 4, सिमिलरली 3, सिमिलरली 2, सिमिलरली 1। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक का सम 7 का मल्टीपल नहीं है, तो वट एवर इज द वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिससे वो सम मल्टीपल ऑफ 7 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का सम मल्टीपल ऑफ 7 बनेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट nth प्लेस पे कोई भी नंबर आए, out of 6 I can have any one possibility, that is what is the probability, 1/6, क्योंकि
इसमें से मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक का सम 7k+1 है तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। अगर यहाँ पे मान लो आपने कहा 7k+2 सम आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7k+2 आते ही यहाँ पे क्या होगा, सम 7 का मल्टीपल आने के लिए लास्ट प्लेस पर 5 आना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6। तो यू कैन सी वट एवर इज द सम हियर, लास्ट प्लेस पर एक ही ऑप्शन बचेगा और वो एक ऑप्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, दैट इज 1/6। तो कैन आई से द टोटल प्रोबेबिलिटी Pn विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट केस, जो कि तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स 1 माइनस Pn-. आई होप दिस रिजल्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है नाउ वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया हमने ऐसा बोला है कि जो nth प्लेस है, ठीक है, उसके पहले n-1 प्लेसेस, मतलब n-1 डाइस है, तो ये n-1 डाइस का सम या तो सम मल्टीपल ऑफ 7 होगा या फिर सम 7 मल्टीपल नहीं होगा, करेक्ट। अगर सम 7 का मल्टीपल हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, बिकॉज लास्ट प्लेस पर अगर इसका सम मल्टीपल ऑफ 7 होगा तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो सम टोटल सम 7 का मल्टीपल बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल है बिकॉज 1 से 6 में कोई भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो दैट इज वाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, अब सेकेंड केस में अगर फर्स्ट से n-1 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसमें सम मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस Pn-1, बिकॉज Pn सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो यू कैन से दिस इज 1 माइनस Pn-1। और ये इंटू 1/6 क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन रखो उसके करेस्पॉन्डिंग लास्ट प्लेस पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, दैट इज वाई 1/6। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, जिसको बोलते हैं हम रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस रिलेशन, राइट। अब हमारे लिए जो क्वेश्चन था, अब आई जस्ट गो टू द प्रीवियस पेज, यहाँ पे यू कैन सी वी हैव गॉट Pn इज इक्वल टू 1/6, so we have got Pn is equal to 1/6 1 minus Pn-1। ठीक है, सो now see here, अब आपको जो फाइंड करना है you have to just find the value P6, क्योंकि आपको n इक्वल टू 6 पे जाना है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, तो now you can see if I take n इक्वल टू 2, मतलब हमने डाइस को 2 बार रोल किया, आप n इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, n इक्वल टू 1 मतलब आपने डाइस को एक बार रोल किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज डिविजिबल बाय 7, की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी बिकॉज कभी नंबर आएगा ही नहीं इस पर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, आपने डाइस को 2 बार रोल किया, तो अगर आपने 2 बार रोल किया तो उसका सम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम मल्टीपल ऑफ 7 आए, तो उसका 6 स्क्वायर, यहाँ पे ये 6 स्क्वायर हो गया, एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, कितने पॉसिबल कैसे होंगे जब सम 7 आएगा, दिस इज आई कैन हैव 6 + 1 1 + 6, आई कैन हैव 3 + 4 4 + 3 5 + 4 + 3। ठीक है, और क्या हो गया, दिस इज भाई मैक्सिमम तो 12 तक जा सकते हो, उसके ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, सो दिस इज, और क्या होगा 5 + 2 2 + 5, देन दिस इज 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, दैट्स इट। सो दीज आर द पॉसिबल केसेस। हाउ मेनी केसेस वी हैव, 1 2 3 4 5 6 6/6 स्क्वायर। सो व्हाट इज Pn P1, this is equal to 0, what is P2, this is P2। ठीक है, P2 is 1/6 राइट। अब P3 फाइंड करने के लिए देखो, या तो आप केसेस बना लो ऐसे, बट ये क्यों डिराइव किया हमने, इसलिए डिराइव किया, देखो व्हाट इज P3 इज 1/6 इंटू 1 माइनस P2 एंड इक्वल टू 3 पुट कर दिया हमने। सो कैन आई डायरेक्टली से दिस इज इक्वल टू 1/6। अब तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, 1/6 इंटू 5/6 विच इज 5/6 का स्क्वायर, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज P4, इफ यू टेक P4 इज 1/6 1 माइनस P3, और 1 माइनस P3 हमने फाइंड कर ही दिया है, दिस इज 1 माइनस P3, दिस इज 1/6 इंटू 1 माइनस 5/30 5, let me write it here, this is, let me so now what is P3 will be equal to 1/6 into 5/6 स्क्वायर। P3 तो हमने फाइंड कर ही दिया ना। P4 what is P4, this is 1/6 into 1 minus P3 which is 1/6 into
1 minus 5 by 6 square. So this is 36 minus 5, that is 31 upon 6. Okay, so similarly you can get what is P5. What is P5? This is 1 by 6 into 1 minus 3 by 31 by 6 cube. Okay, so this is P5, or by same logic you can get the value P6 also. You can get the value P6, which is 1 by 6 into 1 minus P5. Okay, so now you can calculate this. This is 6 raised to 4. So I'll quickly go through the quickly write the answer. So this is, if I calculate this, this is, अब तो आपको कैलकुलेशन पता ही है. आई एम जस्ट गिविंग यू द कैलकुलेशंस. फाइनली क्या आने वाला है इसका, कैलकुलेटर से मैं यूज कर लेता हूँ. दिस इज 185 by 6 raised to 4, right? और लास्ट में दिस विल बिकम 1 by 6 into 1 minus 185 divided by 6 raised to 4. So this will become 6 raised to 5, and this is, I can say this is 6 into 6 minus 185, which is 1111. So you can see that is the final answer. This is 111 upon 6 raised to 5. So what is the probability? This is 1 upon 6 raised to 5. 6 raised to 5. ठीक है. So I hope you have understood this. See, method समझो, calculation you can easily do. How we derive this? ठीक है. In fact, I'll put a link in the description. मैं आपको एक link दूंगा where I have discussed similar type of questions on probability and permutation combination, how to use this recursion type of thing. ठीक है. This is one very important question, one very tricky question अगर आप इस टाइप से यूज करना चाहते हो. बाकी you can use the coefficient method, but this is a logical or easier way to solve this question. ठीक है. So you can just check the calculation and final answer will be 1 upon 6 raised to 5. So that's it for this question. Thank you. Bye bye.